Please start with the introduction. Good evening, sir, and good evening, ma'am. Thank you for this opportunity, sir, to introduce myself. My name is Shritama Bhuya. I belong to the state of West Bengal. However, I have never lived there due to my father's service. My father is in private service and my mother is a housemaker. For the major part, I have lived in the state of Madhya Pradesh, and that is where I have done most of my education from. And in Madhya Pradesh, Gwalior to be particular, for 13 years. I have done my graduation, that is Bachelor's of Science in Agriculture from Rajmata Vijay Raje Sindhia Krishi Vishwavidyalaya, and I passed out in 2019. Then I moved on to pursue my master's in the subject of agronomy from Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya, and I passed out in just last December. And my goal as of now is to become a banker, keeping the relevancy of my subject, that is agriculture, of course, and therefore an AFO. And as far as my hobbies go, I like to sing and paint in my free time. And I have also participated in national level one act play, state, and mime. And I believe that positivity, patience, and a problem solving approach are my strongest suits. That would be all about me, sir. Thank you. Okay, Shritama, you said you have problem resolving skills. So there are a lot of problem faced by or challenge faced by the farmers. So if some farmer came to you and they're not asking for the loan, they are asking for any other query. So what do you think? Will you be able to help at that time? Or you will say no simply why? Because you are responsible for the banking part only and that is not your part. No, sir. I will definitely try my best to help them because even as a banker, my job profile is not just to give them loans or not just to look my profit. So, of course, a public service, like any job that, like banking job, also has a public servicing factor to it. And of course, the major role as a AFO is to benefit the farmers in some way at least. And of course, sir, if any problem that I understand and I can play any role in bettering, I will. Okay, Shritama, how would you deal with a member of banking team who was being unfriendly towards a customer? Sir, first of all, if like I am below, like it depends whether the person is senior to me or junior to me. If junior, then I'll definitely try to instruct them. I'll try to explain it to them in a better way that you should be calm, you should be patient, and you should be friendly to them. Because not hostile and be friendly and make them feel like they can share whatever problems they can go through. And the more they will feel friendly, they will share their problems and they'll take suggestions as well. So I will explain. And if senior, then I do not think I'll have the authority to speak directly, but I will try somehow that they understand that they are a little more kind to the farmers. Okay, Shritama, what skills and attributes do you have that are perfect fit for our bank's value? Sir, I'm extremely sorry, but the last part of your question was not clear. Could you please repeat, sir? Yeah, for sure. Shritama, I asked, what skills and attributes do you have that are fits or that are perfect for our banking industry? Sir, I feel that I have some good communication skills, sir. And as a banker, of course, sir, there will be a lot of situation where I'll have to do public speaking, and I do not shy away from it. I like to interact with people. I am extrovert person. I like to deal with people. I like to learn about new cultures. Again, sir, being a banker, I may have to work, different cultures and different places, different states. So I enjoy the process, sir. So that's why I think that I will be good, sir. Okay, that's great. Shritama, my last question to you is, what challenges are we or our banks likely to face within the next 5 years? Sir, I do not have a very great or deep understanding about it. But as much as I've read, sir, the greatest problem right now is NPA and, sir, of course, frauds. So the recent example is ABG shipyard case, and in that, sir, a total of 28 banks has been cheated. So fraud is becoming, it is just increasing. This is the largest fraud till now. So I think this is one of the growing problems of bank industry, sir. Okay, Shritima, just tell me what are your views regarding privatization of bank? Yes, ma'am, sure. Ma'am, my views on privatization are I'm neither for nor against it. Mhm. Ma'am,
because I believe that yes, privatization, we cannot, the fact cannot be denied that private banks are uh, good in efficiency, as well as the tech part of it, the technology part of the technology, or the services that they provide, ma'am. Like you can just get them on a call, or they will come to even your home to provide services. So that is not available in public sectors. But again, ma'am, considering the condition of India at present, where it is majorly, ma'am, the rural sector is way behind than it should be. So I believe at this point, ma'am, privatization cannot be the solution. Like entire privatization cannot be a solution, because a lot has to go into financial inclusion, as well as bringing, like, if all the banks are privatized, then again, ma'am, it will be very profit driven, and more focus will not go into public service. So I believe for that, right now, ma'am, entire privatization might not be the right solution. Okay, Shritama, what are the important steps taken by a bank for financial inclusion? Ma'am, the steps that are being taken are like schemes like PM Jan Dhan Yojana, PM Mudra Yojana, and banks also play a major role in it. And by financial inclusion, ma'am, basically the objective is that everybody has a bank account, and Mhm. more awareness about the schemes and more transparency in giving the benefits to the uh, needy people is brought about, Mhm. and of course availability of loans at a more affordable rate. So ma'am, bank has a major role in that. Okay, what are the important observation you will keep during the sanctioning of a dairy loan? Ma'am, during the sanctioning of a dairy loan, ma'am, I am not very aware about this, but if you allow me, I'll take a guess, ma'am. Yeah, sure. You can. Ma'am, first of all, yes, ma'am. First of all, I have to see the like tag number, the tag number that is given to the cow or the buffalo. There should be a tag number, and the Mhm. health condition, maybe, ma'am. What is the health condition and all the details about the cow or the buffalo, and Mhm. ma'am, that is all. Okay, fine. Thank you so much. I'm sorry, ma'am. I'll look into it, ma'am. Definitely, definitely. श्रीतम्मा, आपने एवीजी शिपयार्ड के बारे में बताया, सबसे ज्यादा कौन सी बैंक को नुकसान हुआ है? सर, इसमें सबसे ज्यादा ICICI बैंक को नुकसान हुआ। कितना हुआ? सर, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट अभी याद नहीं है। आई एम सॉरी सर, मैं फिर से एक बार देखूंगी। इस तरीके के जो घोटाले बैंक में होते हैं, इनको रोकने के लिए भारत सरकार ने एक बैड बैंक का निर्माण किया है। बैड बैंक के बारे में जानते हैं? जी सर। बताइए। जी सर। सर, बैड बैंक मतलब है सर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। सर, इसका काम ये होता है कि सर जो भी बैंक का एनपीए होता है, उनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, बैंक का एनपीए एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर उसको जो जो भी उनका अमाउंट होता है सर, उसको मार्केट से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, रिकवर करने की कोशिश करता है उस लोन को, और फिर अपना हिस्सा लेके, अपना जो भी कमीशन होता है वो लेके, फिर वो बाकी अमाउंट बैंक को रिटर्न कर देता है। Ma'am, do you know what is NPA? Yes, sir. Sir, by NPA, we mean non-performing assets. Sir, if any loan is given and any installment, either regarded to the interest or the principal amount, is not repaid in 90 days, then sir, it is termed as NPA. Okay. And do you have any idea, do you have any kind of skills to reduce the banking NPA? Sir, yes, sir. Sir, by skills, I have, sir, as a banker, I'll try my best to know about the person that I'm giving loan to by through KYC, of course, to have all the documents beforehand regarding KYC, as well as other documents that the bank requires. And also, I will try to have some security against the loan that is given, so that if they do not pay, then I'll have at least the collateral to get something from. रितुमा, आरआरबी एग्रीकल्चर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? जी सर। सर, आरआरबी एग्रीकल्चर के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि आरआरबी का मेन रोल ही सर यही है कि वो रूरल एरियाज में एक्ट करे, और रीजनल रूरल बैंक जैसे कि बोला जाता है, और सर रूरल एरिया में सर सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर का मेन प्रोफेशन यही है सर, तो इसीलिए सर
रीजनल रूरल बैंक का काफी मेजर रोल है सर। जैसे कि सर पीएसएल में भी उसका 75% देना पड़ता है उसको, या मतलब 75% पीएसएल में जाता है रीजनल रूरल बैंक्स का। तो इसीलिए सर डेवलपमेंट फार्मर्स की हो या रूरल एरिया के लिए आरआरबी काफी इम्पोर्टेंट है। ओके श्रीतमा, आजकल जैसे केसीसी क्रॉप लोन्स में काफी ज्यादा सैचुरेशन आ चुकी है, राइट? और अभी आप इस प्रेजेंट सिनेरियो में ही आपकी ज्वाइनिंग होगी, तो आपकी क्या कंट्रीब्यूशन रहेगी एग्रीकल्चरल टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, जबकि हमारे केसीसी क्रॉप लोन्स में सैचुरेशन आ चुकी है? आप कैसे एग्रीकल्चर क्रेडिट को ऊपर लेकर जाएंगे? मैम एग्रीकल्चरल क्रेडिट से सिर्फ ऐसे नहीं है कि केसीसी, तो मैम सिर्फ क्रॉप लोन दिया जाता है 3 साल, मतलब सिर्फ क्रॉप के लिए दिया जाता है मेजरली। उसको और भी चीजें में यूज कर सकते हैं, लेकिन मैम अभी जैसे कि गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रही है, पोस्ट हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स पे फोकस कर रही है। तो मैम मैं ज्यादातर यही मतलब मोटिवेट करूंगी फार्मर्स को कि वो प्रोसेसिंग की तरफ जाएं, मार्केटिंग पे ध्यान दें, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पे ध्यान दें। और जैसे कि मैम यही है कि द मेजर प्रॉब्लम इसमें यही आएगी कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, तो मैं उन्हें इनकरेज करूंगी कि वो एफपीओ या एसएचजीज या किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें जिसमें वो कलेक्टिवली लोन ले सके, और इस तरीके से मैम एग्री क्रेडिट को भी किया जा सकता है अचीव। आपने बताया आपकी हॉबी है सिंगिंग एंड माइंड, राइट? अपने इन दोनों हॉबीज को यूज करके एक बार मुझे ये बता दीजिए, आप केसीसी को कैसे आगे कैरी, मतलब अवेयरनेस जनरेट करेंगे फार्मर्स में? दोनों अपनी हॉबीज को यूज करके बताइए। यस मैम। मैम सब मेरे 2 हॉबीज हैं मैम, सिंगिंग और पेंटिंग। और मैम पेंटिंग में सबसे मतलब पेंटिंग मैम जैसे कि पोस्टर्स हो गया, या मैम जैसे जो भी पोस्टर्स होते हैं वो बना सकती हूँ मैं मैम, जिसमें से उनको पिक्चर ऑब्वियसली मैम ज्यादा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ज्यादा इफेक्ट करती है। तो मैम ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन उनमें इजी वर्ड्स में समझा, इजी तरीके से पिक्चर्स के सहारे उनको समझाने की कोशिश करूंगी। और बाय सिंगिंग मैम, सिंगिंग मैम कोई भी अगर जैसे गैदरिंग है उसमें मैम अगर कोई ऐसी कल्चरल एक्टिविटी होती है तो सबकी इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा ही होता है। Shritama, what is your major weaknesses? Ma'am, my major weakness is that I do not like to exercise regularly. I usually refrain from exercising and I love to eat, but I am working on it, ma'am. I am trying to learn yoga and I try to do at least 10 Surya Namaskars per day. I'm trying. तो श्रीतमा, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हेल्दी नहीं हुई, तो बैंकिंग जॉब के लिए फिर कैसे फिट है आप? Sir, as I am saying that I am trying to improve, sir. I know that it is my weakness, but I understand that health-wise and दूसरी तरीके से भी सर जरूरी है ये हेल्थ के लिए, बेनिफिट करेगा सर मेरे खुद के लिए भी और बैंक के लिए भी। तो सर मैं कर रही हूँ कोशिश सर योगा सीखने की भी। अच्छा ठीक है, तो पहले क्या करेंगी? पहले बैंक ज्वाइन करना चाहेंगी या हैबिट्स इंप्रूव करना चाहेंगी? सर बैंक के साथ हैबिट्स इंप्रूव करना चाहूंगी। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। जी सर। ओके, आई प्रोसीड विद द सजेशन। मेरे पास सजेशन कम और कॉम्प्लीमेंट्स ज्यादा है आपके लिए। फर्स्ट तो ये कि मुझे आपका इंटरव्यू इंटरेक्टिव लगा, कि आप एक्चुअली मेरे को मेरी बातों का आंसर कर रहे थे, ऐसा मुझे लगा। जब आपको आंसर नहीं आता था तो एवरी टाइम यू सेड सॉरी, आई विल लुक इनटू इट, वो एक अच्छा पॉइंट था आपका। एंड जब आपको डेयरी लोन के बारे में नहीं पता था, आपने नो भी नहीं बोला और आपने तुक्का नहीं भी मारा, आपने परमिशन ली, इफ यू अलाउ मी आई विल गेस द आंसर। वो एक अच्छा पॉइंट था, मतलब कोशिश भी किया, हार नहीं मानी है, और परमिशन लेके तुक्का मारा, ऐसे नहीं मारा। जनरली व्हाट वी यूज्ड टू से, बच्चे क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन ओके है, एफिशिएंसी बढ़ाएगा, बट इन द रियलिटी हो ये भी रहा है कि बैंक्स के सब एम्प्लॉइज ने 2 दिन की स्ट्राइक की थी। इवन उस स्ट्राइक के बदले में 2 दिन की सैलरी भी उनकी गई, सैलरी गई, स्टिल दे आर अगेंस्ट इट, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। एंड योर पॉइंट वाज जेन्युइन, आपने उस चीज को कॉपी ना करके एक सूटेबल आंसर दिया। एंड हाँ, आपके आंसर से दिख रहा है कि आप उन चैलेंजेस के लिए भी रेडी है, क्योंकि आप जब ये वाली बात बोलेंगे दे विल बी आस्किंग यू फ्यू क्वेश्चंस, बट आई एम कॉन्फिडेंट आप उसे आंसर कर लेंगे, तो अच्छा था वो भी।
देन आपसे एजीपी फ्रॉड के बारे में नहीं पूछा गया था, लेकिन आपने घुमा फिरा के मेंशन कर दिया। ये भी आपकी एक पॉजिटिविटी है कि आप आंसर ही दे रही है, लेकिन आंसर्स को फैक्ट के साथ आप प्रूव कर दे रही है। इफ आई एम सेइंग कि मैं एक अच्छा टीचर हूं, बट मैं इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस मैं बोलूंगा कि मैंने लास्ट टाइम 1000 स्टूडेंट्स को एक ही टाइम में पढ़ाया था, तो वो फैक्ट कहीं ना कहीं मेरी जो क्वालिटी है उसे सर्टिफाई कर दे रहा है। वैसा ही आपने किया, इट वाज गुड। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कोई अनफ्रेंडली हो रहा है कस्टमर आपके साथ, अगेन योर आंसर वाज गुड, बिकॉज आपने बोला जूनियर है तो सजेशन दूंगी, सीनियर है तो फिर कोशिश करूंगी, बट नॉट श्योर कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं, बिकॉज हो सकता है मैनेजर ही अनफ्रेंडली हो रहा है, यू वेंट टू मैनेजर, ये क्या बात कर रहा है, काम खराब हो जाएगा ना, तो तुमसे कैसे बात करेगा, फिर दिक्कत है। वो अच्छा था। जी सर। एंड कुछ शुरू में भी था, मैंने नोट किया यहाँ पे, आई विल डू दैट, मतलब कुछ आपने एक्सेप्ट किया होगा, आई एम नॉट श्योर आपने क्या बोला था, बट हाँ ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज गुड। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मोर देन 16 और 17 मार्क्स आपके एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इस बार इंटरव्यू के अंदर। ऑल द यस बेस्ट। I hope so एग्जैक्टली, too, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. थॉट्स बहुत ज्यादा क्लियर थे और इवन आपकी वे ऑफ डिलीवरी वो भी बहुत ज्यादा अच्छी थी, इंटरेक्टिव लग रहा था, मन कर रहा था और ज्यादा क्वेश्चन पूछे और ज्यादा क्वेश्चन पूछे आपसे। तो थॉट्स वर वेरी Thank you, क्लियर ma'am. एंड वे ऑफ स्पीकिंग वाज आल्सो वेरी गुड। और Thank you so much, ma'am. एक वो चीज भी नोट करनी पड़ेगी, इसको पता है कि मैं फंस सकती हूँ, तो इसने इंट्रोडक्शन के अंदर क्लियरली मेंशन कर दिया कि मैं वहां रही नहीं हूँ, फ्रॉम लास्ट 15 इयर्स और 10 इयर्स मैं यहाँ पे हूँ। दैट वाज गुड कि आपको लग रहा है मेरी वो वीकनेस है, तो उसको पहले एक्सेप्ट कर लिया, बिकॉज कोई बुरी बात नहीं है, नहीं पता मैं वहां पे रहा है, वहां पे रही नहीं हूँ या रहा नहीं हूँ, वो भी अच्छा था, है ना। मैं और आपको इवन यस प्लीज। वो जो डेयरी लोन केस में मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था कि क्या ऑब्जर्वेशंस रहेंगी, इवन गेस भी किया बट दैट वाज आल्सो राइट, तो मुझे वो पॉइंट भी अच्छा लगा आपका। Ma'am, उसका करेक्ट आंसर मैम आप अगर बता दें तो प्लीज। ऑब्वियसली बिकॉज हम एक एनिमल का लोन करने जा रहे हैं, तो स्पेसिफिकली अब एनिमल्स तो सब एक जैसे दिखते हैं, तो कुछ एक यूनिक चीज तो होनी चाहिए ना हमारे पास कि हम किस एनिमल का लोन कर रहे हैं। सो टैग नंबर इज द राइट आंसर फॉर दैट। और स्पेसिफिकली साथ में आपको क्या देखना होता है, लैक्टेशन वो कैसी दे रहा है, कितनी बार वो लैक्टेशन दे चुका है, और ईल्ड कितनी आ रही है, वो भी एक मेजर क्राइटेरिया है कि वो डिजीज्ड एनिमल तो नहीं है। टैग नंबर तो है ही है क्योंकि वो उस एक स्पेसिफिक एनिमल का है, बट साथ ही साथ उसकी ईल्ड भी इम्पोर्टेंट है, कितनी बार वो लैक्टेशन दे चुका है, ये भी चीज इम्पोर्टेंट है। और वो लोग ये भी यस पूछ मैम। सकते हैं कि आफ्टर व्हाट एज एक एनिमल जो है वो लैक्टेशन पीरियड में आता है, तो उस चीज के लिए भी रेडी रहना, काउ कितने टाइम के बाद लैक्टेशन में आता है, बफेलो कितने टाइम के बाद लैक्टेशन में आता है, तो ये चीजों के लिए भी आप रेडी रहना, ठीक है। मीन यस वाले इस मैम। इंटरव्यू के अंदर मैं भी एक पार्ट के लिए रेडी हो गया हूँ, बिकॉज श्वेतम्मा ने सारे आंसर किए, एंड व्हेन इट कम्स टू डेयरी लोन तो शी सेड मुझे नहीं पता, तो व्हाट आई वाज थिंकिंग कि एक रैपिड फायर राउंड में प्ले करता हूँ दीक्षा मैम के साथ, बिकॉज राइट नाउ शी इज वर्किंग बैंक, तो मैं आपसे बैंक के बारे में सारे क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर करते जाना, सो दैट जो भी अच्छे स्टूडेंट है वो इन क्वेश्चंस में तो नहीं अटकेंगे। यस यस सर, बहुत हेल्पफुल होगा सर वो। कुछ कुछ पार्ट आप मे भी उसके बारे में भी जानती हैं, बट मेरा पार्ट है सजेशन देना। बैंकिंग से यस सर। रिलेटेड जितने भी हैं, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जा रहा है, तो अगर आप 17 के आसपास एक्सपेक्ट कर रही है ना, तो फिर सब पार्ट पे आपको फोकस करना पड़ेगा, तो मेक श्योर कि बैंकिंग से रेलेवेंट जितनी भी टर्मिनोलॉजी है जो एज एन एएफओ आपको करना पड़ता है, वो सब अच्छे से स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपके लोकल एरिया की इन्फॉर्मेशन सारी कलेक्ट कर लेना, होप्स आपने कर भी ली होगी। बाकी वे ऑफ डिलीवरी में कोई डाउट यस नहीं, सर। आपको जहां पे नहीं आता और जहां पे आता है आप उसे अच्छे से हैंडल कर लेंगे। थैंक यू सो मच सर। ऑल द सर बेस्ट। मेरा एक और यस थैंक यू सो मच मैम। मैम और सर मैं आपसे सर एक क्वेश्चन है जिसका मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे आंसर करूं। सर वो है कि वेयर डू यू सी 5 years फ्रॉम नाउ। सर टू बी ऑनेस्ट सर मेरे को तो ये भी नहीं पता 6 महीने बाद क्या होगा, तो सर 5 साल बाद सर क्या होगा सर, वो तो सर मेरे को समझ नहीं आता किस तरीके से इसका मतलब एक वो जवाब क्या होगा सर तो नेचुरल लगे, सूटेबल राइट। सर। हाँ यस मैम। अब मैम वही है कि बैंक में सिलेक्ट होंगे तो मैम आई कैन से मे बी दैट आई लुक माई सेल्फ हायर अप द मैनेजमेंट। एक ना जनरलाइज स्टेटमेंट भी आप दे सकते हो कि आप एक सेटिस्फैक्ट्री स्टेज में अपने आप को देखते हो, कि जो आपको लगता है लाइफ ट्विस्ट एंड टर्न्स तो आएंगे आएंगे, बट एक सेटिस्फैक्ट्री स्टेज पर आप हो, आप वहां पर अपने आप को 5 years में देखते हो। इधर वो बैंक में हो सकता है, किसी और सेक्टर में चले जाओ वहां हो सकता है। एक सेटिस्फैक्ट्री स्टेज जब आप बोल दोगे तो वो किसी भी सेक्टर में हो जाए। अब ये तो आपने सही बात बोली, ट्विस्ट एंड टर्न्स तो आ सकते हैं लाइफ में, बट एक सेटिस्फैक्ट्री स्टेज पे देखते हो वो एक सबसे सेफ आंसर हो सकता है। बाकी मैम ओवरऑल देंगे आपको।
मैम मैं ये बोल सकती हूँ क्या कि आई सी माई सेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट एज अ सक्सेस एंड एज अ सक्सेसफुल पर्सन who एग्जैक्टली can fulfill their needs and wants of their family. या एग्जैक्टली सबसे सेफ आंसर है। जी मैम। मैम फिर वो ना ऐसा मैंने एक और इंटरव्यू दिया था मैम, उसमें फिर वो क्रॉस क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि ऐसे कैसे गोल्स है तुम्हारे, कोई वो मतलब ऐसे डिफाइन करो, थोड़ा वो बताओ, क्लियर गोल्स बताओ, ऐसे कैसे ये है, कुछ तो तुम अभी नहीं हो क्या। फिर मैम वो ऐसा हो जाता है। ये बैंकिंग इंटरव्यू नहीं था जो आपने बोला? हाँ यस सर, बैंकिंग इंटरव्यू नहीं था सर। एग्जैक्टली ये किसी प्राइवेट कंपनी का कुछ काइंड ऑफ प्लेसमेंट वाला इंटरव्यू था। यस सर, यस सर। मैम क्या होता है ना, प्लेसमेंट वाले में ना हम जैसे नए नए लोग बैठे होते हैं और हमें जब इंटरव्यू लेने का मौका मिलता है तो थोड़े से लोगों के साथ मिलता है, तो फिर हम अपनी सारी विशेष पूरी कर लेते हैं, ये पूछ लो वो पूछ लो। ऐसा क्वेश्चन स्टैंडर्ड इंटरव्यूअर आपसे नहीं पूछेगा। वो ये गलत काम करते ही नहीं है कि बच्चे का मोराल डाउन कर दो, बच्चे को नर्वस कर दो। अब नर्वस हो रही है ना, आपको वो ठीक करने की कोशिश करेंगे। दे विल बी आस्किंग यू टू हैव वाटर, टू हैव कॉफी, कुछ ऐसी बातें कर लेंगे कि बच्चा नॉर्मल हो। ये प्राइवेट कंपनीज इन्वॉल्व में छोटा मैनेजमेंट मतलब तो जो भी ये लोग आते हैं तो इनको उतना एक्सपीरियंस नहीं होता, बट दोज हु हैव गिवन देयर सर्विसेज फॉर 35 इयर्स उनको बहुत कुछ पता है इंडस्ट्री के बारे में। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों के साथ उतना इंटरव्यू अच्छा नहीं जाएगा, आपका उनके साथ ज्यादा अच्छा जाने वाला है। मैं नहीं अभी सर, सच में आपके यही साथ बात भी बोलने बहुत वाली थी अच्छा कि रहता है सर। जो इंटरेक्शन आपका यहाँ पर है ना, वहां पर इससे भी बेटर होने वाला है, बिकॉज वो थोड़े से ना आपको कंफर्ट जोन में लेकर आते हैं पहले, और अगर आपका यही एटीट्यूड रहा तो वहां पर इससे भी बेटर जाएगा आपका इंटरव्यू। आई होप सो टू मैम। We wish you all the best, ma'am. ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर।